Hello. How is everyone doing today? Today's video is about some things that really help me in moving on. In this, we will be discussing some of the root causes of why you are not able to move on, or some of the practical things that you could do, or make it a part of your daily routine, which can actually help you in moving on. Because I guess you can have a lot of realizations, but still you need to make some practical changes in order to move on. Yes, let's get started. Number one is accepting the fact that you can still have feelings for them, but you can still choose to move forward. Because I think one of the things that I really used to get stuck on was, how can I move on when I still care for them, or I need to wake up and that day I won't feel anything for this person and then I can finally move on. But what I just realized is that day might never come. Like, for example, if you are in a really long relationship with someone 10 years, like I have seen people who are in a relationship with someone for 8 years, 7 years, 10 years, and then when the time ends, like you feel like the relationship is not working out anymore, then would you wait for the day when you really will feel nothing for this person? And will that day ever come? Because I think once, if especially if you are the kind of person who, if really cares, then you care too deeply. So I think once you care for someone, it's really hard to get rid of those feelings. Yes, the feeling eventually will fade, of course, I admit that. But I used to get stuck on this fact that I still feel a connection to this person. Then why then I can't move on? Like, if I'm still feeling a connection to this person, I can't just move on. But then I just realized I don't need to act on that fact that I still care about them or I feel this connection for them. I just need to see the entire picture. Like, yes, they are someone who was important to me, but they are at this point also not right for me. So number one would be, just don't try to get rid of those feelings. Just let it be, and the more resistance you will build around it, the difficult it would be. So I think, yeah, just accept that, okay, this was a significant part of my life, but right now I need to move on because that's what is the best decision for me. So yes. Number two would be writing down all the reasons regarding why you should move on, and this can consist of the things that they did that really hurt you. Like, when I mean things that really hurt you, I want you to write the worst things, and these would be the things that are the reason, like major reasons of why you broke up with them. And then there could also be another factor. Like, I'll give an example. I When I physically wrote it down, when I wrote it down on a paper, it is so much better that way. Because once you write it down, like, it is okay if you want to type it out in your notes app or something, but when I physically wrote it down, it just, you remember it. And every time when I remembered about this person, I just closed my eyes, and in my mind there was this image of the paper that on which I wrote everything down. And the top 5 reasons was something that were literally majorly the reason, or the hurtful things, like the worst things that they did to me. And I want you to write those things that literally felt very betraying. And I'll give you an example. For example, I just wrote down that this person was indeed manipulating me, and they were a big liar, and lies, I can't tolerate lies. So whenever I just read that they lied to me and they actually manipulated me and took advantage of my care, then it automatically makes me so angry. And this is the truth. Like, I know there could be a million things that they have done right in the relationship, but I also know the fact that if the relationship is not right for you, and the fact that you are moving on, that the big picture is you just need to move on. So just remind yourself of the things that were like totally red flags. Because for me, एट अ पॉइंट ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मेजर हो गई थी कि अच्छी चीज़ें दिखना ही बंद हो गई थी, बिकॉज बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी. तो वो वाली चीज़ें लिखो जो बहुत ज़्यादा बुरी हो, बिकॉज इट विल काइंड ऑफ कीप यू ग्राउंडेड इन टू द रियलिटी. बिकॉज अब इस केस में भले ही ब्रेकअप मैंने किया हो, ठीक है, उस पीरियड ऑफ टाइम पे मुझे पता है कितनी बुरी थी चीज़ें, बट योर ब्रेन समहाउ कन्विंस योर सेल्फ कि नहीं, इतनी भी बुरी नहीं थी, देयर वॉज पोटेंशियल, देयर इज़ अ कनेक्शन, यू नेवर फेल्ट दिस वे. तो बार बार खुद को याद दिलाना ज़रूरी है कि नहीं, वो सही नहीं था. क्योंकि कभी कभी, लाइक, आई क्लियरली रिमेंबर there was this 1 month when we didn't talk, 1 entire month, and when I went back and read the chats, like, उस एक महीने में मैंने इतना पोटेंशियल दिमाग में बना लिया था, इवन दो आई न्यू कि भाई ये नहीं करना, ये सही नहीं है.
जब मैंने वो चैट्स पढ़ी 1 महीने बाद, मुझे याद ही नहीं था कि उसने ये सब किया भी है और यही रीज़न था जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था वो चैट्स पढ़ के 1 महीने बाद, बट समहाउ उस 1 महीने में बीच में वो सब चीज़ें मुझे याद ही नहीं आई। थोड़ा बहुत इतना पता था कि हाँ ब्रेकअप हुआ है, ये बंदा सही नहीं है, बट जब वो चैट्स पढ़ी तो लिटरली हर चीज़ याद आ गई कि इसने इतना इतना बुरा किया है मेरे साथ। तो आई थिंक दैट गिव्स यू इन रियलिटी और यू कैन री राइट इट बार बार जब तक यू जस्ट फील कि ठीक है अब मुझे ये समझ आ चुका है। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बार ना, जब स्पेशली इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, यू विल काइंड ऑफ मेक दैट कनेक्शन इनटू समथिंग और मेक दैट पर्सन इनटू समथिंग जो वो है भी नहीं, और फिर वो तुमको स्टक ही रखेगा। तो जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग एंड बी रियली क्लियर अबाउट इट। लाइक उसमें कोई ऐसे शुगर कोटिंग मत करो। तुमको भी पता है सच क्या होगा, सच पता ही होता है खुद को, बट समहाउ यू डिनाई इट। तो जस्ट राइट द रीजंस एज टू वाई यू शुड मूव ऑन, और ये रीजंस खुद से रिलेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो रोट कि डू आई सी दिस पर्सन फिटिंग इन टू माई फ्यूचर ड्रीम लाइफ। लाइक इफ टुमारो आई वेकअप एंड आई हैव दिस ड्रीम लाइफ वेयर आई एम डूइंग एवरीथिंग आई वॉन्ट टू डू, वेयर आई हैव द काइंड ऑफ पीपल अराउंड मी जैसे लोग मैं चाहती हूँ, क्या ये पर्सन वर्थ इट भी है? लाइक डज दिस पर्सन इवन फिट इन टू दैट कैटेगरी? तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट दैट। अपने से रिलेटेड चीज़ भी लिखो। Ask yourself that, like I also wrote, I would be betraying myself if I let this person in again in my life. So just keep writing the reasons and keep rewriting them or rereading them until you kind of make peace with the fact कि ठीक है चलो it's over. Number 3 is introspection, and I know ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा कि अपने साथ की रिलेशनशिप को अच्छा बनाओ, लाइक लव योर ओन सेल्फ, ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा, बट आई थिंक इट कैन गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता था कि मैं इस पर्सन पे इसलिए स्टक हूँ बिकॉज दिस पर्सन इज़ स्पेशल, ठीक है, जो कि सच भी था। बट देन वन डे माई फ्रेंड जस्ट पॉइंटेड आउट कि यू आर नॉट स्टक ऑन हिम, यू आर स्टक ऑन अ फीलिंग दैट ही वॉज गिविंग यू। लाइक ही मेड यू फील सो अंडरस्टूड एंड सीन एंड you are somehow stuck on it. And then I thought about it and I was like yes, because जब भी मैं इस पर्सन को याद करती थी, मैं वो वाले मोमेंट्स याद करती थी when he did listen to me and when he was there for me। तो कहीं ना कहीं मैं उस फीलिंग के पीछे थी, एंड ये मेरे को तभी समझ आया when I started questioning myself कि ऐसा क्यों है। और मैंने जब खुद को बेटर अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, फिर मैंने और भी बहुत कुछ पूछा कि why is this connection special। then I also realized कि because the conversations were very good and as a person I like to have deep conversations। तो तुमको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी, फिर यू कैन शो अप फॉर योर सेल्फ इन दोज वेज। लाइक अगर मुझे इस पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन करना पसंद था, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन रीड अ बुक टू फुलफिल दैट नीड ऑफ माइंड। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, बट ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन था कि मैं उस फीलिंग पे अटकी हूँ। मुझे ये पर्सन पसंद भी था, बट आई थिंक ऐसा बहुत बार होता है कि पीपल आर जस्ट स्टक ऑन द फैक्ट कि उन्हें बस प्यार चाहिए। डिपेंड नहीं करेगा कि कौन है उनका पार्टनर, बस उन्हें प्यार चाहिए, चाहे किसी से भी चाहिए, जो कि बहुत अनफेयर हो सकता है बिकॉज यू शुड ऑल्सो लाइक द पर्सन। आई थिंक 50-50 होना चाहिए ये रिलेशनशिप में। लाइक 50% इज यू लाइक देम फॉर हु दे आर, बट ऑल्सो वॉट दे कैन गिव यू, बिकॉज दैट ऑल्सो मैटर्स इन अ रिलेशनशिप। लाइक ऐसे बंदे के साथ थोड़ी रिलेशनशिप में रहोगे जो तुम्हें ट्रीट ही नहीं करता अच्छे तरीके से, बट वैन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ यू विल रियली रियलाइज कि जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो कहाँ से आ रही है। वो अट्रैक्शन है, वो इन्फैचुएशन है, वो रियल लव है, या तुम क्यों अटके हो। तो आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और रीज़न है इसका, इट विल अवॉइड यू फ्रॉम गेटिंग स्टक इन टू द सेम साइकिल्स। लाइक इट यूज टू हैपन विद मी कि आई एम इन द सेम सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ मैन, सेम लाइक they would be avoidant, they would be not in touch with their feelings, and same situation they would be stuck on their ex। और मैं ऐसे ही लोगों के साथ like somehow I keep getting into situationships with them। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने वो भी खुद से पूछा, बिकॉज अ पार्ट ऑफ मी नीडेड हीलिंग, बिकॉज indeed you are who you attract। और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, बट ये सच है। आई रियलाइज ये कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि आई वॉज स्टक ऑन समवन, तभी मे बी आई वॉज ऑल्सो अट्रैक्टिंग समवन हु इज़ इंडीड स्टक ऑन समवन। कहीं ना कहीं मुझे ये समझ नहीं आता था, बट now I know that it is the truth that the energy you embody, you kind of attract that energy। so I think introspection तुम्हें इन दो चीज़ों से like it can save you very much from getting stuck into the same cycles, and also figuring out कि
क्या इज दिस इवन लाइक डू यू जेन्युइनली केयर फॉर दिस पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर स्टक, या फिर यू आर जस्ट चेजिंग आफ्टर अ फीलिंग। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये कनेक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर तुम्हें पता लगेगा व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू नीड। सो येस, number 4 would be try to get other people's perspective on your breakup या your relationship, या फिर try to see yourself as you would see someone else। like अगर कोई तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड सेम सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में तुम हो, तो तुम उसे क्या एडवाइस दोगे। सो आई रिमेंबर, अभी भी मुझे ये बात याद है, जब ये हुआ था, जब ये ब्रेकअप हुआ था, तो दिस वीडियो रैंडमली पॉप्ड इन माई फीड एंड this girl was vlogging and her relationship, like basically इतनी interesting story है ये, because that was a vlog with her boyfriend, ठीक है। और comments मैं पढ़ रही हूँ, people are clearly pointing out the red flags that her boyfriend has। and जब मैंने वो वीडियो देखी, I just realized कि it's the same situation। like जब तुम उस सिचुएशन में होते हो तुम देख ही नहीं पाते, जब तुम एज अ थर्ड पर्सन देखते हो इतना क्लियर होता है। उस वीडियो में क्लियरली वो लड़का, the girl was so into the guy, the girl thought that the guy is her entire world and he's so special, while the guy was like okay going with the flow, relationship में ही तो है। मतलब वो एनर्जी ही मैच नहीं हो रही थी, और ये एनर्जी इतनी वो होती है ना, मतलब देखने से वो फील होता है तुम्हें। आई जस्ट रियलाइज ओ शिट, ये तो सेम सिचुएशन है। एंड व्हेन आई ऑल्सो ट्राई टू टेक माई फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप, या किसी और को मैं सेम सिचुएशन में देखूँ, तब वो बिल्कुल क्लियरली हिट होता है। बिकॉज जब तुम उस सिचुएशन में होते हो तुम्हारी फीलिंग आ जाती हैं, तुम्हें पोटेंशियल दिखने लग जाता है, बट सच तो वही होता है बेसिकली जो दूसरा बंदा तुम्हें बताए। चाहे हाँ मतलब ठीक है, आई नो कि तुम उस इंसान के लिए केयर करते हो, तो कहीं ना कहीं ये होता ही है, दूसरों को वो सब नहीं पता जो तुम्हें पता है, बट कहीं ना कहीं सच भी सच ही होता है जो दूसरे लोग बहुत अच्छी तरह बता देते हैं। तो आई थिंक ये इस चीज़ ने बड़ी हेल्प की है। जस्ट टू क्लैरिफाई अबाउट दैट वीडियो वाला पार्ट, लाइक द कपल जिसमें लोग कमेंट कर रहे थे रेड फ्लैग। आई नो वीडियो देख के हमेशा इतना पता नहीं लग पाता, बिकॉज तुम्हें एंटायर स्टोरी नहीं पता, सिर्फ एक व्लॉग या व्लॉग्स से तुम क्या ही बता दोगे। एंड आई नो दैट, बट वो कभी कभी एक वाइब मिल जाती है ना, एक एनर्जी, एंड दे डिड एंड अप गेटिंग लाइक दे ब्रोक अप। सो आई थिंक कभी कभी वो एनर्जी एक जो तुम फील कर लेते हो, लाइक अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्हें कुछ कहता है, तो एक वो एनर्जी जो इंट्यूटिवली तुम पिकअप करते हो, वैसे आई मेंट कि देख के लगा कि यार ये तो सेम सिचुएशन लग रही है। नंबर 5 वुड बी जस्ट pouring yourself into something that you really like, and this has been literally a lifesaver, because मैं क्या करती थी, I used to work, but that work was not something that I really used to enjoy, but I used to just ruminate about this person pure then. And then one of my friends just suggested me to do something that I really like, or just find a new hobby। इनिशियली मैंने एक न्यू हॉबी ढूंढी, ठीक है, बिल्कुल आई जस्ट डिड इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, एंड उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे माइंड अभी भी वो एनर्जी प्रॉपरली डाइवर्ट नहीं हो पा रही थी। But then during that time I also started making content, and literally it was something that I used to like so much, and I like it so much now also। दैट टाइम ऑल्सो जब मैं कंटेंट बना रही थी मेरी सारी एनर्जी उसमें जा रही थी, एंड इट वॉज समथिंग आई वॉज रियली एन्जॉइंग। एंड मेरे इतना ध्यान डाइवर्ट हुआ कि ऐसे हो जाता था कभी कभी कि 3 घंटे हो गए हैं एंड आई हैवंट इवन थॉट अबाउट दिस पर्सन, एंड ये सुन के लगेगा कि यार बस 3 घंटे, बट एज अ पर्सन जब कोई स्टक होता है ना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम फॉर सम रीज़न यू कांट गेट देम आउट ऑफ योर माइंड। सो मेरी एनर्जी इतने सही तरीके से डाइवर्ट हुई, एंड इट इज़ नॉट टू अवॉइड योर फीलिंग्स। आई थिंक वो इंट्रोस्पेक्शन वाले पार्ट में शायद कवर हो गया कि अपनी फीलिंग्स को फील करना भी बहुत ज़रूरी है, तो अभी तुम शायद रूट कॉजेज तक भी पहुँच पाओगे। बट समटाइम्स यू जस्ट नीड समथिंग टू पुट योर एनर्जी इनटू, बिकॉज पूरा दिन तो ओवर थिंक नहीं कर सकते ना। एंड मेरे साथ ऐसा होता था, रात को मैं इतनी थक जाती थी कंटेंट बना के, टाइम ही नहीं मिलता था, एनर्जी नहीं बचती थी टू थिंक अबाउट दिस पर्सन। दिन में ऑफकोर्स कभी कभी तो याद आई जाती है, स्पेशली इफ़ इट्स वेरी फ्रेश, बट नेक्स्ट डे आई एम वेकिंग अप एंड आई एम थिंकिंग अबाउट किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ आज। तो एक बहुत अच्छा, इट इज़ अ वेरी गुड वे टू चैनल योर एनर्जी। सो येस, डेफिनेटली ट्राई दैट। So yes, that is it for this video, and do let me know in the comments how did you feel about this video, or things that have helped you in moving on, and I'll see you in the next one. Until then, take care, bye.